ایک زمانے میں ایک بہت امیر اور خوشحال سلطنت تھی جہاں ہر طرف امن اور خوشی کا راج تھا۔ اس سلطنت کی رعایا اپنے بادشاہ سے بے حد مطمئن تھیں کیونکہ وہ نہایت انصاف پسند اور مہربان تھا۔ لوگ سکون سے اپنی زندگیاں گزار رہے تھے اور ہر چہرے پر خوشی نظر آتی تھی۔ مگر اس محل کی ملکہ بے اولاد تھی اور اس کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ اس کے ہاں بھی ایک پیاری سی اولاد ہو جس کی ہنسی سے محل گونج اٹھے اور ہر کونا خوشیوں سے بھر جائے۔ وہ اکثر خاموشی سے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتی، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل بھر آتا اور وہ دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ایک دن اس کی زندگی میں بھی یہ خوشی ضرور آئے۔ اوہو ملکہ، آج پھر آپ کچھ اداس سی لگ رہی ہیں۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو تسلی دیتا، وہ اسے دلاسا دیتا کہ ایک دن ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی۔ مگر ملکہ کی آنکھوں میں چھپی اداسی ہر بار ظاہر ہو ہی جاتی۔ ایک دن ملکہ شدید بیمار ہو گئی اور بادشاہ اس کی دیکھ بھال میں رات دن مصروف رہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس سے دور نہ جاتا، مگر افسوس کوئی بھی دوا اثر نہیں کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت، ہم نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے مگر کوئی بھی دوا ملکہ پر اثر نہیں کر رہی ہے۔ ایک آخری امید باقی ہے۔ جنگل کی گہرائی میں ایک نایاب سنہرا پھول ہے جس میں بے مثال شفا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ فوراً وہ پھول حاصل کیا جائے۔ جی حضور، آپ کا حکم سر، آنکھوں پر وہ پھول ضرور لایا جائے گا۔ سپاہی، میری بات غور سے سنو۔ بادشاہ کا حکم ہے، تمہیں گھنے جنگل سے ایک سنہرا پھول لانا ہوگا۔ حکیم نے اس پھول تک پہنچنے کا راستہ ایک سپاہی کو سمجھا دیا اور سپاہی تیز گھوڑے کی رفتار سے دن بھر سفر کرتا ہوا ایک گھنے جادوئی جنگل میں پہنچ گیا۔ یہ پھول بہت نایاب تھا، اسے رپنزل کا پھول کہا جاتا تھا اور اس پھول تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ اس پھول میں ایک خاص روشنی تھی، مگر ہر نعمت کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اس کی بھی تھی۔ سپاہی نے ایک ایک کر کے اس باغ کے سارے رپنزل کے پھول توڑ لیے اور اسی رات محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ مگر یہ پھول جس کے گھر کے سامنے سے توڑے گئے تھے، وہ گھر ایک چڑیل کا تھا جس کا نام گتھل تھا، جو بظاہر ایک جوان لڑکی لگتی تھی، مگر وہ کئی 100 سال پرانی چڑیل تھی جو اس پھول کا رس پی پی کر جوان رہتی تھی۔ ٹھیک اسی دن جب یہ پھول توڑے گئے، وہ انہی پھولوں کا رس تیار کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ کس کی ہمت ہوئی میرے باغ سے میرا پھول چرانے کی؟ کہاں گیا؟ یہاں بھی نہیں۔ جو بھی یہ پھول لے گیا ہے وہ مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چہرے کی جھریوں میں چھپ گئی کہانیاں ہزار، ہر لکیر وقت کی ایک خاموش پکار۔ ہم مسکراتے رہے دنیا کے لیے عمر بھر اور آئینہ دکھاتا رہا گزرتا ہوا ہر سال۔ اس دن جب اسے پھول نہ ملے تو گوتھل پر جیسے وقت کا جادو الٹا پڑ گیا۔ وہ پلک جھپکتے ہی بوڑھی ہونے لگی اور خوف و بے بسی کے عالم میں اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے، جیسے اس کی ساری طاقت اس سے چھن رہی ہو۔ ادھر محل میں ان پھولوں کے رس کو نہایت احتیاط سے تیار کیا گیا اور سارے طبیب اس عمل میں لگ گئے تاکہ علاج میں کسی قسم کی کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ میری اہلیہ، یہ پھول کا عرق پیجیے، امید ہے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ ملکہ کو روزانہ اس پھول کا رس بڑی احتیاط اور محبت سے پلایا جاتا رہا اور کچھ ہی دنوں میں اس کی حالت آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ اس کے چہرے پر پھر سے رونق لوٹنے لگی اور محل میں امید کی ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آیا کہ جیسے تقدیر نے مسکرا کر ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور ملکہ کے ہاں ایک ننھی سی خوشخبری آنے والی تھی۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں میں وہ گھڑی بھی آ پہنچی جب محل میں خوشیوں کی گونج سنائی دینے لگی اور ملکہ کے ہاں ایک نہایت پیاری سی بیٹی نے جنم لیا جس کا نام اسی نایاب پھول کے نام پر رکھا گیا، ریپنزل۔
वक्त के साथ साथ रेपंजल बड़ी होने लगी। वो अपनी माँ के साथ हंसती खेलती और उसे सूरज की सुनहरी तस्वीरें बनाने का बेहद शौक था। दिन भर खेलने के बाद वो थक कर सुकून से नींद की आगोश में चली जाती, जैसे हर रात कोई खूबसूरत ख्वाब उसका इंतजार कर रहा हो। इधर गोथल गम में डूबी बूढ़ी होती गई कि एक दिन एक खबर ने उसे चौंका दिया। महल में एक नन्ही शहजादी ने जन्म लिया है जिसका नाम रेपंजल रखा गया है और कहा जाता है कि वो उन्हीं जादुई फूलों की बरकत से दुनिया में आई है। ये सुनकर गुथल गुस्से और बेचैनी में आ गई और उसने दिल ही दिल में एक खतरनाक इरादा कर लिया कि वो चोरी छुपे महल जाएगी ताकि किसी न किसी तरह उन जादुई फूलों की एक झलक या एक पत्ता ही हासिल कर सके। रात कर तारीकी में वो खामोशी से महल में दाखिल हुई, जैसे कोई साया दीवारों के साथ साथ सरक रहा हो। मगर जैसे ही उसने रेपंजल को सोता हुआ देखा, वो बेइख्तियार उसकी तरफ खिंची चली गई। नन्ही शहजादी के सुनहरी बाल चांदनी में चमक रहे थे। गुथल ने आहिस्ता से उसके बालों पर हाथ फेरा और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत दौड़ गई और वो पल भर में फिर से जवान हो गई। उस अचानक मिलने वाली जवानी के लालच में आकर उसका दिल और भी सख्त हो गया और वो रेपंजल को अपनी बाहों में उठाकर खामोशी से महल से ले गई, जैसे कोई राज रात की तारीकी में छुप गया हो। मासूम रेपंजल दिन भर की थकन के बाद गहरी और पुरसुकून नींद में सोई हुई थी। उसे खबर तक ना थी कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। गौथल निहायत एहतियात से उसे अपनी गोद में उठाकर आहिस्तगी से घोड़े पर सवार हो गई। आखिरकार गौथल उसे एक बहुत ऊंचे और वीरान मीनार तक ले गई जो हर तरफ से तन्हा खड़ा था। वहां पहुंचकर उसने रेपंजल को उस मीनार में आप कैद कर दिया, जहां न कोई दरवाजा आसानी से पहुंच में था और न ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। कैसी ने क्या खूब कहा है, हमने अपनी जवानी यूं ही कैद में गुजार दी, ख्वाब देखते रहे मगर हकीकत सवार ना सके। उम्र कैद काटी हमने अपनी ही ख्वाहिशों में और वक्त के हाथों खुद को आजाद ना कर सके। रेपंजल, तुम कहाँ हो? कहीं छुपी हुई हो? रेपंजल, 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 तुम कहाँ हो? खुदा के लिए ऐसा मजाक मत करो। सिपाहियों ने पूरा महल कोने कोने तक छान मारा, हर दरवाजा और हर राहदारी देख डाली, मगर जैसे रेपंजल हवा में गुम हो गई हो, उसका कहीं कोई सुराग न मिल सका। सिपाहियों, फौरन निकल जाओ, रेपंजल को तलाश करो, मुझे हर हाल में इसकी खबर चाहिए। रो मत, हम रेपंजल को ढूंढ लेंगे। बहुत साल गुजर गए, दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए और रेपंजल अब 18 साल की हो चुकी थी। रेपंजल उसी ऊंचे मीनार में कैद अपनी जिंदगी गुजार रही थी, जहां उसकी दुनिया बस चंद दीवारों तक महदूद थी। गौथल ने उसके सुनहरी बाल कभी ना काटे और ना ही काटने दिए, क्योंकि वो उन बालों को छूकर अपनी जवानी वापस हासिल करती थी। मगर मासूम रेपंजल को इस राज और गौथल की इस खुदगर्जी का जर्रा बराबर भी अंदाजा न था। वो तो उसे ही अपनी दुनिया और अपनी माँ समझती थी। मैंने सारी जिंदगी इसी मीनार में गुजारी है, बस दिल करता है कि देखूं बाहर की दुनिया कैसी है। रेपंजल, बाहर की दुनिया बेरहम और संगदिल है, तुम सिर्फ यहीं महफूज हो, सिर्फ मेरे साथ। तुम नहीं जानती बाहर कितनी बुराई है, मैंने हमेशा तुम्हें महफूज रखा है। जी माँ, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए बेहतर ही चाहती हैं। महल में मलिका और बादशाह अपनी गुमशुदा बेटी की याद में तड़पते रहे और वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े हो गए। हर साल जब रेपंजल की सालगिरह आती
तो वो उसकी याद में अपने महल से रोशन लालटीनें आसमान की तरफ छोड़ते, जैसे हर लालटीन के साथ अपनी दुआएं और उम्मीदें भी हवा के सुपुर्द कर रहे हों। और ये चरागा हर साल उसी दिन क्यों होता है? यही वो रोशनियां हैं जो मुझे हर साल अपनी तरफ बुलाती हैं। काश मैं एक बार उन चरागों को करीब से देख सकूं। रेपेंजल को न अपनी सालगिरह याद थी, न ही अपने असली माँ बाप के चेहरे, क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में ही कैद हो गई थी। मासूम रेपेंजल इन रोशन चिरागों की आदी हो गई थी और वो हर साल इनकी तस्वीरें अपने मीनार की दीवारों पर नक्श करती थी। खबीस चोर, तू हमारे हाथ से कैसे बच सकता है? पकड़ो इसे। एक रोज उसी जादुई जंगल में हलचल मच गई जब कुछ सिपाही एक चालाक चोर के पीछे दौड़ रहे थे। उसका नाम फिलिन राइडर था। वो हवा की तरह तेज कदमों से भागता, दरख्तों के बीच से निकलता और हर मोड़ पर सिपाहियों को चकमा देने की कोशिश कर रहा था। वो अपने घोड़े पर सवार होकर हवा से बातें करता दौड़ा और घने दरख्तों के बीच से गुजरता हुआ एक सुनसान गार तक जा पहुंचा, जहां वो दबे कदमों से अंदर गया और खामोशी से खुद को छुपा लिया, क्योंकि सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। आखिर वो महल का एक खास ताज चुराकर फरार हुआ था। सिपाही अभी भी यही है। मैं क्या करूं? कहां जाकर छुपूं? उसकी नजर एक ऊंचे मीनार पर पड़ी और खुद को छुपाने के लिए उसके जहन में एक ख्याल आया। ये टावर मेरे काम आ सकता है। ऊपर जाकर छुपता हूं जब तक खतरा टल नहीं जाता। वो अपने आप को छुपाने के लिए खामोश रास्तों से घने जंगल में गुजरा ताकि सिपाही उसे देख ना ले, और काफी देर के बाद वो उस मीनार तक पहुंच पाया। ये दरवाजा पूरी तरह बंद है, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। अब ऊपर कैसे जाऊं? कोशिश करके देखता हूं। दरवाजा बंद मिला तो उसने अपनी महारत को आजमाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता पत्तों और शाखों को मजबूती से थामता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। वो हर कदम निहायत एहतियात से रख रहा था ताकि कोई आवाज ना हो और कोई उसे देख ना ले। उसे क्या पता था कि जिस मीनार पर वो चढ़ रहा है उसी में रेपंजल बरसों से कैद थी, और उधर रेपंजल को क्या खबर कि फिलिन राइडर के आने से उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो थकन से निढाल हो चुका था। वो वहीं बैठ गया और चंद ही लम्हों में गहरी नींद में डूब गया। सर पर तवा मारने के बाद रेपंजल घबरा गई। हैरत और खौफ के आलम में उसे देखती रह गई और फिलिन राइडर को कुछ समझने का मौका ही न मिला। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रेपंजल की नजर फिलिन राइडर के चुराए हुए ताज पर पड़ी। वो हैरान हो गई, जैसे उसने कोई अनोखी और चमकती हुई चीज पहली बार देखी हो। उसने धीरे से आगे बढ़कर बड़े एहतियात से उसे उठाया, आंखों में हैरत और तजस्सुस लिए, जैसे वो किसी अनजाने राज को समझने की कोशिश कर रही हो, और फिर बड़े प्यार से उसे अपने सर पर सजा लिया। उतनी देर में फिलिन राइडर को होश आ गया। उसे कुछ समझ न आया कि वो बेहोश क्यों हुआ था। उसे ये भी अंदाजा न हुआ कि उसके बैग में अब ताज मौजूद नहीं था, और वो मीनार से जाने लगा। तुम कौन हो और तुम्हारे सर पर इतने बड़े बाल? उफ, मेरी जान छोड़ो। तुमने ये ताज मेरे बैग से चराया है, उसे वापस करो और मुझे जाने दो। तुम पहले ये बताओ तुम कौन हो और मेरे मीनार में चोरी छुपे क्यों घुसे हो?
हर कोने की तलाशी लो, वो दूर नहीं गया होगा। जल्दी करो, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो फौरन पकड़ लेना, उसे भागने न देना। खबीस चोर यहीं कहीं छुपा है, जिसने ताज चराया है उसे गिरफ्तार करके बादशाह के पास पेश करो। तो तुम वही खबीस चोर हो जिसने ये ताज चराया है। अगर मैं अभी शोर मचा दूं तो तुम बच नहीं पाओगे। नहीं नहीं, खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ। ये ताज तुम ही रख लो और मुझे जाने दो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। रेपेंजल ने उसे कुर्सी पर बिठाया और अपने लंबे बालों से फिलिन राइडर को मजबूती से बांध लिया। फिलिन राइडर का सर पहले ही चकरा रहा था क्योंकि तवा उसके सर पर जोरदार लगा था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान था और उसका जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा था। रेपेंजल एक अजनबी के आ जाने से परेशान थी, मगर उसके साथ उसे एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही थी। उसने फिलिन राइडर को दीवारों पर बनाई हुई चिरागों की तस्वीरें दिखाईं। मैं तुम्हें यहाँ से तब जाने दूंगी जब तुम मुझे ये चरागां दिखाने ले जाओगे। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ले जाऊंगा। मेरा सर दर्द कर रहा है, तुमने जो फ्राई पान मारा है। और रेपेंजल ने फिलिन राइडर के साथ अपने मजबूत बालों का सहारा लेते हुए मीनार से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो पहली बार खुली फजा में आई, तेज हवा ने उसके बालों को छू लिया तो वो एक लम्हे को थम गई। ये उसके लिए एक नया एहसास था। मुझे डर लग रहा है, अगर माँ को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। फिक्र मत करो, हम रात ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है। रेपेंजल ने जब पहली बार कुदरत के नजारों को देखा तो वो खुशी से बेकाबू सी हो गई, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। कभी वो हंसती हुई झूला झूलती और कभी नरम घास पर बैठकर आसमान में जगमगाते सितारों को हैरत से देखती रहती, जैसे हर मंजर उसके लिए एक नया ख्वाब बनकर उभर रहा हो। सुनो, महल में चरागा होने वाला है, चलो कश्ती में नहर की तरफ चलते हैं। ठीक है। जैसे ही वो दोनों महल की तरफ बढ़े, आसमान यकाएक रोशन चिरागों से जगमगा उठा। वो दिल मोह लेने वाला मंजर था, जैसे सितारे जमीन के करीब आ गए हों और आसमान रंगों की रोशनी से सजा दिया गया हो। और रेपेंजल को यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आज हकीकत बनने वाली हो। फिर अचानक एक लालटेन कश्ती के पास आकर गिरा। रेपेंजल यकाएक बचपन की धुंधली यादों में खो गई, जैसे कोई पुराना ख्वाब उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर आ गया हो। इस लालटेन पर वही सुनहरी सूरज की तस्वीर थी जो वो बचपन में अपनी माँ के साथ बनाया करती थी। ये तो वही तस्वीर है जो मैं बचपन में अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया करती थी। इसका मतलब मेरी असल माँ तो महल की शहजादी है और गोथेल ने मुझे जबरदस्ती कैद कर रखा है। ये तो सरासर जुल्म है। गोथल बहुत खुदगर्ज और चालाक निकली। तुम्हें अपने असल घर वापस जाना होगा। हमें वापस मीनार जाना होगा क्योंकि मैं ताज वहीं छोड़ आई हूँ। ठीक है। वो दोनों खामोशी से मीनार की तरफ बढ़े, इस उम्मीद के साथ कि वो ताज उठाकर उस मीनार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, लगता है गोथल ऊपर होगी। मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूं, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मगर जो उन्होंने खौफनाक मंजर देखा वो ऐसा था कि किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। रेपेंजल ने गोथल का ये खौफनाक रूप पहली दफा देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक न सके। वो खौफजदा थी और साथ साथ बहुत अफसुर्दा भी, क्योंकि जिसे वो माँ समझती थी वो दरअसल एक खौफनाक मखलूक थी। बेटा रेपेंजल, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और ये लड़का कौन है?
तुमने किसी अजनबी को मीनार में कैसे आने दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई? फिक्र ना करो बेटा रेपंजल, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बालों से फिर जवान हो जाऊंगी। इसी वजह से आपने कभी मेरे बाल नहीं काटे, क्योंकि इनमें जादू छुपा हुआ है और मुझे सारी जिंदगी कैद में रखा। इतनी बड़ी खुदगर्जी? नहीं बेटा, ऐसा ना कहो, मेरे पास आओ, अपने बालों को छूने दो। रेपंजल ताज पकड़ते हैं और फौरन यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं, आज ही इस कहानी का खात्मा होगा। तुम जल्दी से मेरे बाल काट दो। ये नहीं हो सकता, रुक जा। और यूं गुथल हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गई, जैसे उसका नामो निशान ही बाकी ना रहा हो। रेपेंजल और फिलिन राइडर ने एक पल की भी देर ना की। वो उस खौफनाक मीनार से निकलकर तेजी से आगे बढ़े और पीछे मुड़कर ना देखा, जैसे वो माजी को वहीं छोड़ आए हों। और फिर दोनों उम्मीद के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। उस दिन महल सुनसान था और खुशकिस्मती से वो बगैर किसी रुकावट के महल के अंदर तक पहुंच गए। सिपाहियों को खबर तक ना हुई। रेपेंजल ने जब अपने असल माँ बाप को देखा तो उसे कुछ यूं महसूस हुआ। आंखों में आंसू थे, लबों पे दुआ आई। जब माँ और बाप को देखा तो जिंदगी लौट आई। बेटा, तुम अंदर कैसे दाखिल हुई और इतना रो क्यों रही हो? आप जो हर साल आसमान में लालटीन छोड़ते हैं, उन पर बनी सूरज की तस्वीर मैंने आज देख ली है। रेपेंजल, तुम्हें कौन उठाकर ले गया था? तुम कहाँ चली गई थी? रेपेंजल ने अपने माँ बाप को अपनी कहानी सुनाई कि गुथल कौन थी और कैसे उसने उसके जादुई बालों को कैद रखा और किस तरह फिलिन राइडर उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आया। बेटी, लालटीन पर बनी सूरज की तस्वीर हमारी आखिरी उम्मीद थी। हम उसे जानबूझकर आसमान में छोड़ते थे ताकि तुम जहां भी हो उसे देख लो। और आखिरकार हमारी बेटी ने देख लिया और हमारे पास दौड़ी चली आई। और यूं रेपेंजल अपनी असल माँ बाप से जा मिली और तीनों आखिरकार एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हो गए, जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो और उनकी दुनिया फिर से मुकम्मल हो गई हो। बादशाह और मालिका फिलिन राइडर से बहुत खुश हुए। उन्होंने रेपेंजल की पसंद को अपनाया और यूं खुशियों और दुआओं के साथ दोनों की शादी कर दी गई। मगर आखिर में फिलिन राइडर ने रेपेंजल को एक हैरत अंगेज तोहफा दिया। तुमने ये ताज मीनार से कब उठाया? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं एक खबीस चोर जो हूं।